my dear students, कैसे हैं बच्चे आप लोग? In last video we have studied and we have started the chapter Discovering Tut. The saga continues by A.R. Williams. आप सबने पढ़ा? We have already studied the first 4 paragraphs and I hope that you all have gone through to it properly. So beta, now let's continue with the same chapter, that is Discovering Tut. The saga continues. हमने इसमें क्या पढ़ा था बेटा कि जो टट था वो फ़ारो था, कहाँ का? इजिप्ट का, एंड ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द पावरफुल फैमिली ऑफ इजिप्ट। और उसके बाद उसकी डायनेस्टी में कोई नहीं बचा था। ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ हिज डायनेस्टी एंड हिज डेथ वॉज अ मिस्ट्री इवन येट। आज भी उसकी डेथ एक मिस्ट्री है, that how he meet to his death in the so early stage of his life. He ruled for 9 years. He became emperor. He became king when he was 9 years old and he died when he was 18 years old. तो इतना तो हमने पढ़ा है। एंड मैंने ये भी आपको बताया था बेटा that Howard Carter, who was the British archaeologist, he has just discovered his mummy and in 1922 when he discovered King Tut's tomb. Okay, so let's continue that Howard Carter and we will just today we will study about Howard Carter and his findings. So in 1922 when he discovered King Tut's tomb, जब उन्होंने King Tut के tomb को find out किया, एंड बेटा इट्स कंटेंट रिमेन द रिचेस्ट कलेक्शन एवर फाउंड। इससे पहले इतना रिच कलेक्शन किसी मम्मी के साथ नहीं देखा गया था, नहीं पाया गया था। एंड इट हैज़ क्रिएटेड सेंसेशन अमंग पीपल ऑल्सो। भाई लोगों को जब पता चला कि एक ऐसी मम्मी है उसके साथ इतना ज़्यादा रिचेस्ट कलेक्शन है, एंड इवन द गोल्ड, द ज्वेलरी दैट was those ornaments which were there with that mummy, it was really the fine specimen of art. समझ में आया? So it has created a sensation among the people and those tourists and visitors who are visiting to that place. Now you can say that Tut was buried with, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया था बेटा कि जो इजिप्शियन पीपल थे they believe in the life after death, यानी कि मौत के बाद की ज़िंदगी में वो यकीन करते थे। उन्हें लगता था कि मरने के बाद हमारा एक और जीवन होता है, एंड दे बिलीव इन दैट। सो व्हाट इज़ दैट्स व्हाई दे यूज टू बरी द पीपल विद लॉट्स ऑफ things which is just required in the day-to-day life. So that's why Tut's mummy was also buried with you can say board games, bronze razor, cases of food, clothes, wine, etc. So many things which is used in day-to-day life that were just with Tut also, that those things were buried with Tut. So it means as I have already told you that Tut's mummy was buried with all those necessary things which he could need in life after death. So now Zahi Hawass just explained about the mummy's condition. What was the mummy's condition when he found the mummy of Tut? He said that it was in very bad condition. It was just broken, or it was cut into parts. The major joints of the body was separated. So it was not the as a whole mummy, rather it was, and some parts were also just missing. Some like some ribs, bone, etc. were missing also. So he claimed that Tut's mummy was in a very bad condition. Howard Carter, who found it 1922, and he found it in 3 nested coffins. यानी कि जब उसने बॉडी को उसने निकाला था तो बॉडी जो है बेटा 3 नेस्टेड कॉफिन में थी। जो फर्स्ट कॉफिन था, फर्स्ट कॉफिन में उसने देखा जब हावर्ड कार्टर ने उसे बाहर निकाला था, तो एट दैट टाइम व्हेन ही ओपन द फर्स्ट कॉफिन, इन द फर्स्ट कॉफिन श्राउड वॉज डेकोरेटेड विद गार्लैंड्स। आपने देखा होगा
कि किसी की डेड बॉडी पे हम श्राउड यानी कि कफन डालते हैं, उस पर कुछ मालाएं वगैरह डालते हैं, आपने रिचुअल्स में देखा होगा अकॉर्डिंग टू रिचुअल्स। तो उसी तरह से जो फर्स्ट कॉफिन था, एज ही ओपन द फर्स्ट कॉफिन, there was the a shroud which was decorated with the garlands of willow and olive leaves, as well as some lotus petals were there, as well as it was decorated with cornflowers. So these are the flowers in which season they used to bloom, यानी कि जिस सीज़न में ये खिलते हैं, जिस मौसम में, जिस मंथ में ये फ्लावर आते हैं, तो most probably these flowers bloom and these flower can be seen in the month of April to March to April. ये कब, मार्च से अप्रैल के महीने में देखे जा सकते हैं. So it was the guess was made and it indicated that most probably Tut's demise took place in the month of मार्च और अप्रैल, या तो उसकी डेथ अप्रैल और मार्च में के आसपास ही हुई थी, क्योंकि उसी समय शायद उसको दफनाया गया था. बिकॉज ही वॉज बरीड इन दीज 2 months. क्यों? क्योंकि जो फ्लावर्स के रिमेन्स मिले थे, इट वॉज इंडिकेटिंग अबाउट द डेथ मंथ ऑफ डट. सो नेक्स्ट व्हाट वाज देयर व्हेन कार्टर जस्ट रीच्ड टू द मम्मी, ही फाउंड दैट रिचुअल रेजन्स हैड हार्डन. देखो, जब वो फाइनली जो लास्ट वाला कॉफिन था उसमें पहुंचा, तो उसमें वो मम्मी जो है उसको रखा गया था. और आपको मैंने पहले ही बताया था दैट मम्मी इज़ जस्ट एम्बाम मीन्स उस पर लेप जो लगाया जाता था उसको प्रिजर्व करने के लिए, जो भी रेजन्स यूज़ करते थे, तो दैट वाज एम्बाम. एंड वो इतना हार्ड हो गया था कि उसकी वजह से वो कॉफिन से बिल्कुल सीमेंटेड था, चिपक गया था. सीमेंटेड यानी उससे वो चिपक गया था. सो ही फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू सेपरेट इट फ्रॉम कॉफिन. उसके लिए बहुत मुश्किल था कि वो उसको कॉफिन से निकाल सके. इट वॉज़ नॉट एन ईजी टास्क बिकॉज इट वॉज, आपने देखा होगा कि आप कोई भी चीज़, जैसे आप जब सीमेंट, घर में हम प्लास्टर करते हैं ना बेटा, तो उस समय जो उसका हम एक मिक्सचर बनाते हैं, वो मिक्सचर आप 2 ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए बीच में आप वो लगाते हैं, और आफ्टर सम टाइम वो क्या है, वो आपस में जब हार्ड हो जाता है तो पूरी तरह से चिपक जाता है, सीमेंटेड हो जाता है. एंड देन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू जस्ट सेपरेट इट. अगर हमें करना है तो फिर हमें उसे तोड़ के ही अलग करना पड़ता है. द सेम हैपेंड विद टट्स मम्मी ऑल्सो, क्योंकि जो एज पर द रिचुअल्स जो मम्मी को प्रिजर्व करने के लिए जो रेजन्स लगाए जाते थे, उस रेजन्स की वजह से वो क्या है, उस कॉफिन के साथ पूरी तरह से चिपक गई थी. So as it was totally completely cemented with the coffin, so Howard Carter had to chisel out King Tut's mummy. उसे क्या है, आपने छेनी वगैरह कुछ टूल्स लेकर उससे उसको अलग करना पड़ा फर्स्ट. बट बिफोर दिस ही ट्राइड, लेकिन उसने डायरेक्टली उसको किसी टूल्स की हेल्प से नहीं, बल्कि उसने अदर एफर्ट्स भी किए कि वो बॉडी ईज़िली सेपरेट हो सके. आपने देखा होगा कभी कभी हमें कोई चीज़ बहुत टाइट हो जाती है तो हम उसे सॉफ्ट करने के लिए, थोड़ा मेल्ट करने के लिए, ताकि वो ईज़िली हम उसको बाहर निकाल सके, क्या करते हैं, हम उसे हीट करते हैं. सो दैट्स वाई जस्ट टू लूजन दैट रेजन्स ही पुट दैट मम्मी इन सन. ठीक है ना, उसने ही हैज जस्ट टेकन आउट that mummy from its tomb, from its coffin, with its coffin, because it was not getting separated from the coffin. So he put it in sun, उसको धूप में रखा, and try to heat it up to 149 डिग्री फ़ारेनहाइट. उसने इतना टेम्परेचर दिया 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, so that it can be just separated, थोड़ा वो मेल्ट हो जाए और उससे सेपरेट हो जाए. बट नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ. वो बिल्कुल भी वो जो रेजन्स था, वो आप ये देखो बेटा कि उस समय वो इजिप्शियन पीपल किस तरह से क्या यूज़ करके मम्मी को प्रिजर्व करते होंगे कि इतनी टेम्परेचर के बाद पे जाने के बावजूद भी वो बिल्कुल भी जो रेजन्स था वो मेल्ट नहीं हुआ, सॉफ्ट नहीं हुआ. एंड फाइनली in you can say in his next effort what he did,
ही हैड टू कट द लिम्स एंड ट्रंक, यानी उसके अंग, उसकी बाजू, उसके पैर और उसका ट्रंक, उसका जो धड़ है उसे काटना पड़ा, क्योंकि फिर उसने उसे पीसेस में तोड़ तोड़ के निकालना पड़ा। आपने देखा भी होगा बेटा कि कोई चीज़ जब हम कोई निकालने की कोशिश कर रहे हैं जो बहुत टाइट हो गई है, अंदर फिक्स हो गई है, तो जब हम कोशिश करते हैं तो वो पीसेस में बाहर आ जाती है। तो सेम थिंग हावर्ड कार्टर हैज़ टू डू, क्या करना पड़ा उन्हें, ही हैड टू डू व्हाट ही हैड टू डू, दैट ही हैड टू जस्ट कट द मेजर जॉइंट्स, मेजर जॉइंट्स उसको कट करने पड़े। अब आपने देखो ये भी माना जाता था, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि जो इजिप्शियन पीपल थे वो बिलीव करते थे लाइफ आफ्टर डेथ, तो उसके साथ वो सारी नेसेसरी चीज़ें थी। उन्हें लगता था कि वो अपना शायद फेट, अपना भाग्य भी बिल्कुल कैरी ऑन कर सकते हैं। तो वहाँ पर उसके साथ उन कॉफिन में सारी, जिसे कह सकते हैं डेली उसकी चीज़ें थी, उन सबको बाहर निकाला गया। प्लस उसके बाद उसकी बॉडी के जो मेजर जॉइंट्स थे उसको काट कर बाहर निकाला गया। और फाइनली जब इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हॉवर्ड कार्टर ने उस बॉडी को दोबारा से सैंड पे, उसी रेत पे रीअसेंबल किया, एक उस बॉक्स में, वुडन बॉक्स में उसे रीअसेंबल किया। एंड देन जो बीच बीच के जो गैप्स, क्योंकि टूटने के बाद सेम तो ज्वाइंट नहीं हो सकते, तो उन्होंने क्या है कि पैडिंग की, उसमें थोड़ा सा भूसा और ये सब चीज़ें यूज़ करके, पैड्स यूज़ करके, ड्राई ग्रास वगैरह यूज़ करके उसको प्रॉपर शेप देके फिर से वुडन बॉक्स में शिफ्ट कर दिया, उसमें रख दिया, ठीक है ना, जिस तरह से उन्होंने उसे निकाला था। बट अभी इस टाइम पे क्या चेंजेस थे कि वो मम्मी जो है उसके मेजर जो जॉइंट्स थे वो अलग हो गए थे, और उसको दोबारा से रीअसेंबल करके उसी तरह से उसी कॉफिन में रखकर वापस जहाँ पर वो रेस्ट कर रही थी उसके टॉम में, वहाँ पर वापस शिफ्ट कर दिया गया। सो व्हेन दे हैव जस्ट kept it back in its resting place, and after that when it was just again studied about because जो हावर्ड कार्टर थे उन्होंने उसे किस लिए बाहर निकाला था बेटा, उसका एक्सरे करने के लिए। लेकिन इसके साथ ही साथ बेटा ये कब की बात है, 1922 की। अभी धीरे धीरे समय के साथ साथ आर्कोलॉजिस्ट का जो पॉइंट ऑफ व्यू है और जो आर्कोलॉजी है वो टाइम के साथ साथ उसमें बहुत बदलाव आया है, उसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं। नाउ आर्कोलॉजिस्ट यूज टू फोकस less on treasure and more on the fascinating details of life and fascinating mysteries of death। वो लोग किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं बेटा, they are just focusing less on treasure and more on fascinating details of life and fascinating mysteries of death। यानी कि देखो टट की बॉडी के साथ, उसकी मम्मी के साथ बहुत सारा धन भी रखा हुआ था, बहुत सारा गोल्ड भी रखा हुआ था, लेकिन वो सारी चीज़ें लोगों को अट्रैक्ट कम कर रही थी। ज़्यादा अट्रैक्शन उनका किस चीज़ के था, उनका ध्यान किस चीज़ पे था, दे वॉन्ट टू नो द डिटेल्स ऑफ लाइफ ऑफ टट एंड दे वॉन्ट टू नो द मिस्ट्रीज ऑफ हिज डेथ। यानी कि वो किस चीज़ पे ज़्यादा उनका ध्यान था, लेस ऑन ट्रेजर and more on the mysteries of his life and death। and in 1968 मैंने आपको अभी बीच में बेटा बताया भी था कि हावर्ड कार्टर के बाद 1922 के बाद फिर से 1968 में, यानी कि 40 इयर्स के बाद, आफ्टर 40 इयर्स ऑफ हावर्ड कार्टर्स डिस्कवरी, एन एनाटॉमी प्रोफेसर हैज़ एक्सरेड द ममी। उन्होंने उस मम्मी को दोबारा से एक्सरे किया था। यानी कि जो ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट हावर्ड कार्टर थे, उनकी मम्मी को बाहर निकालने के 40 साल बाद, 80 साल बाद किसने निकाला था, ज़ही हवास ने। और बेटा ज़ही हवास कौन थे, मैंने आप लोग को बताया भी था दैट ही वॉज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज़। समझ में आया।
तो उन्होंने 80 साल बाद निकाला था, अप्रॉक्स आफ्टर 80 ईयर्स। आफ्टर 40 ईयर्स एक एनाटॉमी के प्रोफेसर थे, उन्होंने बॉडी का दोबारा से उस मम्मी का एक्सरे किया था। एंड देन what he found some facts that King Tut's chest, his breastbone and his front ribs were missing। यानी कि कार्टर के बाद जब एनाटॉमी प्रोफेसर ने उसकी बॉडी को क्या किया था, एक्सरे किया था, then what he found that the chest, breastbone and his front ribs were missing, and this has again created you can say a suspense that why it was missing, whose fault was it। so ये सारे questions again लोगों के mind में arise हुए। and बेटा King Tut's demise was a big event even by royal standards also, because he was the last ruler of his dynasty or you can say of his family, and his funeral meant the end of a royal dynasty। यानी कि उसके अंतिम संस्कार के साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि वो इजिप्ट की एक पावरफुल फैमिली का लास्ट हेयर था, उसके बाद उस फैमिली का बिल्कुल अंत हो गया। तो यहाँ पे यानी कि उसकी जो डेथ थी ये एक बहुत बड़ा इवेंट थी। क्यों? क्योंकि उसकी फनरल यानी उसकी अंत्येष्टि का मतलब था कि उसकी जो रॉयल डायनेस्टी थी उसका अंत उसकी डेथ के साथ ही हो गया था। इट मीन्स ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ हिज फैमिली, क्योंकि मैंने बताया ही था बेटा कि वो उसने 9 ईयर्स तक रूल किया। जब वो 9 साल का था तब वो राजा बन गया और 18 ईयर्स में उसकी डेथ भी हो गई थी। तो यानी कि उसके साथ ही उसकी फैमिली जो कि एक बहुत पावरफुल फैमिली थी उसका भी अंत हो गया। बट द फैक्ट्स ऑफ हिज डेथ एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस आर स्टिल अनक्लियर। यानी कि उसके मरने के बाद क्या हुआ, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे उसके मरने के बाद, उसके राज्य का, उसकी फैमिली का क्या हुआ, दैट इज़ टोटली अनक्लियर, दैट इज़ स्टिल मिस्ट्री। एंड the archaeologists are still just investigating about, just to know about the facts and the mysteries of his death। is this clear beta? so it means we have learned, हमने अभी मतलब जाना, सीखा। क्या सीखा बेटा? कि तट की डेथ के साथ ही उसके वंश का भी अंत हो गया था। समझ में आया? इट मीन्स his death has just bring to its end to his dynasty also, it was the end of his family line also, यानी कि उसकी फैमिली लाइन का भी एंड हो गया था। ठीक है, अभी पढ़ते हैं चलो किंग टट और उसके एंसेस्टर्स के बारे में। in my first video lecture I have just, while I was just giving you the summary, I have already discussed about his ancestor also, like it is still in confusion that Amenhotep III was his father or grandfather, but there is mention that maybe King Tut's father or grandfather in your chapter also, that Amenhotep III was his father or grandfather। he was a powerful king, यानी कि वो बहुत ही पावरफुल किंग था, एंड he has ruled for 4 decades, यानी कि उसने इजिप्ट पे लगभग 40 साल तक शासन किया। ठीक है, ये किसके? टट के एंसेस्टर्स रहे, उनके पूर्वज रहे। ठीक है, नाउ जो अमेनहोटेप थर्ड के जो बेटे थे उनके बाद जो आए, हु वाज देयर हिज सन अमेनहोटेप फोर्थ। अमेनहोटेप फोर्थ हु सक्सीडेड हिम, हु सक्सीडेड टू अमेनहोटेप थर्ड। ही वॉज अ वेरी वैकी किंग, बहुत ही वैकी था, बहुत ही यू कैन से स्ट्रेंज था। वाई ही वॉज सो स्ट्रेंज? बिकॉज ही जस्ट स्टार्टेड बिहेविंग इन अ अनयूजुअल वे। एक राजा जो होता है बेटा वो क्या करता है? अपनी प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखता है। वो जो हमारी पुराने रिचुअल्स होते हैं उनको रिस्टोर करता है,
अपने ट्रेडिशंस को, अपने कस्टम को मेंटेन करता है, और उसमें जो मॉडिफिकेशन होते हैं वो बेटरमेंट के लिए होते हैं। लेकिन अमेनहोटेप फोर्थ जो था बेटा, ही वॉज अ वेरी स्ट्रेंज किंग। ही जस्ट प्रमोटेड वर्शिप ऑफ अटेन। अटेन का मतलब होता है द सन डिस्क, एंड ही हैज़ चेंज हिज नेम अमेनहोटेप टू अखेनटेन, यानी कि अटेन को अपने नेम के साथ उसने ऐड कर लिया, और अमेनहोटेप की जगह उसने अपना नाम क्या रख लिया, अखेनटेन। एंड इसके साथ ही साथ उसने सिर्फ अपना नाम चेंज नहीं किया, सिर्फ गॉड अटेन की वर्शिप को प्रमोट नहीं किया, रादर व्हाट ही डिड, ही हैज़ जस्ट शॉक्ड हिज कंट्री बाय हिज एक्शंस। उसके कुछ एक्शंस ऐसे थे जिससे कि पूरा जो देश था, पूरे इजिप्ट के लोग थे, वो शॉक्ड थे। उसने क्या किया, ही हैज जस्ट अटैक्ड अ मेजर गॉड अमुन। जो अमुन वहाँ के जो देवता थे, वहाँ के जो भगवान थे जिनको लोग पूजते थे, उन पे अटैक किया। उसने अपने आप को भगवान माना। हालांकि जो फ़ारोज़ होते थे उनको लोग क्या मानते थे, गॉड मानते थे। यहाँ पे इजिप्ट में मंदिरों में उनकी भी, भगवान के साथ साथ उनकी भी मूर्तियाँ रखी जाती थी। बट उसने क्या किया, ही जस्ट स्टार्ट अटैकिंग टू द मेजर गॉड अमुन, and he has just broke and smashed all the images and temples of God Amun. God Amun के सारे temples और उनकी सारी images को क्या कर दिया, तोड़ दिया, उसको smash कर दिया. So it was really such action which is not expected to a king. So let's move to the next slide. And beta, about this, Ray Johnson, director of the University of Chicago's Research Center in Luxor, he has just called this king very odd. जो बेटा डायरेक्टर थे, क्या नाम मैंने बताया, रे जॉनसन. रे जॉनसन was a director of the University of Chicago's Research Center in Luxor. He has just called this king very odd. उन्होंने उसे बहुत odd कहा. क्यों? क्योंकि उसका बिहेवियर बिल्कुल अनयूजुअल था. दैट वॉज नॉट जस्ट लाइक अ किंग. इट मीन्स ही डिडंट बिहेव लाइक अ किंग. उसने एक राजा की तरह बिहेव नहीं किया, बल्कि उसने क्या है, अपने आप को एक तानाशाह की तरह से रिप्रेजेंट किया. ही वॉज अ टायरेंट. ठीक है ना. बहुत ही अत्याचारी जो होते हैं राजा, जो अपने आप को सिर्फ इम्पोज करते हैं लोगों के ऊपर. दे यूज टू जस्ट इम्पोज देयर विल्स एंड देयर एक्शन ऑन अदर्स without thinking the, you can say, good or better, without thinking the welfare of their subjects. So he was that kind of king. What he said about him, he said that it was really terrible time. अब देखो, कभी भी बेटा आपने देखा होगा, हमने बहुत इतिहास पढ़ा है, हिस्ट्री पढ़ी है, उसमें देखा होगा जहाँ पे राजा अत्याचारी होगा, वो अपने डिसीजंस को जो कि सब्जेक्ट्स के फेवर में हो, यानी उसकी प्रजा के फेवर में हो या ना हो, उन पे इम्पोज करता है, तो डेफिनेटली उसका अंत जल्दी होना होता है, और उसका ही नहीं, उसके पूरे साम्राज्य का अंत हो जाता है. तो द सेम हैपेंड हेयर ऑल्सो. यहाँ पे रे जॉनसन ने क्या कहा, दैट एट दैट टाइम वॉज रियली वेरी टेरेबल. वाई इट वॉज अ वेरी टेरेबल टाइम फॉर दोज पीपल? बिकॉज it was the end of that dynasty. क्योंकि ये they were just moving towards their end. उन्होंने अपने अंत की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था. किन लोगों ने? उस फैमिली के लोगों ने. यानी कि वो एक ऐसा टेरिबल टाइम था जहाँ पर एज द फैमिली, उस फैमिली के लिए जिसने कई सदियों तक शासन किया, that had ruled for centuries, now that family was near to its end. आज वो फैमिली, वो शासन, वो साम्राज्य अपने अंत की तरफ था. Now after the death of Amenhotep IV, जिसने अपना बाद में नाम चेंज करके क्या रख लिया था, अखेनटन. अभी मैंने बताया, यानी कि अखेनटन की डेथ के बाद एक बड़ा मिस्टीरियस रूलर एग्जिस्टेंस में आया. उसका नाम था स्मेंखरे, जिसने कि बहुत छोटे टाइम के लिए रूल किया.
वो एक बहुत ही, जिसे कह सकते हैं, उसने कोई ऐसा सिग्निफिकेंट उसका रोल नहीं रहा हिस्ट्री में। बस बहुत ही रिमार्केबल, उसको हम नहीं कह सकते कि वो एक राजा रहा। सिंपली ही जस्ट come and without any sign, without any remarkable action, without any, you can say, any sign, he just moved out, यानी कि वो आया and just departed, आया और चला गया, यानी कि उसने बहुत लंबे समय तक शासन नहीं किया, ना ही उसका कोई हमें साइन, उसका कोई वर्क और एक्शन का कोई प्रूफ मिलता है। ठीक है बेटा। नाउ Tut, whose name was Tutankhaten. Tutankhaten, then after Smenkare, he has took over the throne. वो सिंहासन पर बैठा, उसने सिंहासन लिया। एंड दिस बॉय किंग, बेटा ये क्वेश्चन भी आ जाता है, हम टट को बॉय किंग भी कहा जाता था, द बॉय किंग। क्यों कहा जाता था? क्योंकि सिर्फ जब वो 9 साल का था तब वो थ्रोन पे अपने सिंहासन पर बैठा, उसने राज्य संभाल लिया था। ठीक है। सो ही इज़ जस्ट फेमस एज द बॉय किंग ऑल्सो इन हिस्ट्री। तो द बॉय किंग सून चेंज हिज नेम टुटनखातेन टू टुटनखामुन। उसने अपना नाम क्या रख लिया? टुटनखामुन। देखो अभी अमेनहोटेप ने अपना नेम चेंज करके क्या कर लिया था? टुटनखातेन, यानी कि जो कि अटेन के वर्ष पर, यानी द सन डस के वर्ष पर। और टुटनखातेन ने अपना नाम बदल कर क्या कर लिया? टुटनखामुन, यानी कि जो अमुन को वर्शिप करते थे। इसने क्या किया? टट ने, उसने अपनी ओल्ड वैल्यूज़ को रीस्टोर करने की कोशिश की। ही ट्राइड टू रीस्टोर ऑल द ओल्ड वैल्यूज़ सो दैट ही कैन केप्ट अलाइव विद हिज ट्रेडिशंस। अपने संस्कारों और अपने ट्रेडिशन के साथ वो जीवित रह सके और उन्हें ज़िंदा रख सके। यानी कि टट जो है एक अच्छे राजा के रूप में आया। उसने 9 साल तक शासन किया। उसका जो जिसे कह सकते हैं रूलिंग पीरियड है वो सिर्फ 9 ईयर्स का ही रहा। बहुत ही यंग एज में उसकी डेथ भी हो गई, बट स्टिल जितना भी टाइम उसने रूल किया वो बहुत ही रिमार्केबल है हिस्ट्री में। और वो एक अच्छे राजा के रूप में, अपनी फैमिली के अच्छे राजा के रूप में अपने सब्जेक्ट के द्वारा एक्सेप्ट किया गया और लोग उसे पसंद करते थे। समझ में आया बेटा? आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो, because now we will discuss about, in the next video we will discuss about that how the cities can took place, how Zahi Hawass has successfully completed that the city scanning that mummy. So we will just discuss about this in next video. Till then you will just go through to the given question answer. I am just giving you some questions. You will just complete your learning work. You will just go through to the video properly. You will go through to the chapter properly, and then you will be able to answer the question which I am going to give you as a homework. So just have a screenshot of these these questions only. I am just giving you question, not answers. Answers are going to be come from your side. You are supposed to write the answer of the given question. Here I have just given you some work to do. You will just go through to the chapter properly, and there whatever doubt will be there, you will just ask me by just dropping your queries in WhatsApp group, or you can just drop your queries in comment box also. But it is really very important to go through the chapter. Otherwise, if you will not study it properly, you will not understand it. Okay, so whatever the remaining part is there, we will just study in next video. Till then you will go through to the taught part, and you will just write down the answer of the given question. These are the very simple questions which you are supposed to write in your fair notebook. Okay, and send me the pic after just completing the work. Fine. Thank you.